कविता का शीर्षक है कविता मत पढ़ना। लड़कियों का जब हम चित्ताकर्षण ध्यानाकर्षण करना चाहते थे तो कहते थे इसको मत छूना, इस दिशा में मत जाना, तो आदमी का मन करता है कि उसी दिशा में चले। तो उसी को मन में रखे हमने एक कविता लिखी, कविता मत पढ़। कविता वाचू नकोस, कविता वाचू नकोस, अंगभर फुटतील डोळे आणि पाहशील त्या तुझ्याच डोळ्यांची प्रतिबिंबे, प्रतिबिंबातील प्रत्येक डोळ्यात असेल एक कविता, निशिगंधाच्या वासानं तुझ्या डोळ्यात बघत कविता वाचू नकोस. मराठी असे आमची माय बोली, जरी आज ती विश्वभाषा नसेल. सो कविता वाचू नकोस, अंगभर फुटतील डोळे आणि पाहशील त्यात तुझ्याच डोळ्यांची प्रतिबिंबे, प्रतिबिंबातील प्रत्येक डोळ्यात असेल एक कविता, निशिगंधाच्या वासानं तुझ्या डोळ्यात बघत कविता वाचू नकोस. कविता वाचू नको, जीव भस्मटून जाईल. कविता वाचू नको, जीव भस्मटून जाईल. पंख तोडून टाकशील स्वतःचे, वाटेल कवीला झिलावं वरचेवर आणि मिठीत टाकावं गुदमरून. अजून त्याच्या कविता तुला वाचायच्या आहेत. आईच्या लेकरासारखं कवीला जप, त्याच्या कवितेला जप. कविता वाचू नकोस, कविता वाचू नकोस, रात्री तर मुळीच वाचू नकोस. कविता वाचू नकोस, रात्री तर मुळीच वाचू नकोस. अवेळीच येईल पहाट, खिडकीतून राहील डोकावर, अधांतरी तरंगत बोलेल तुझ्याशी. कविता मागेल तुला तिचा मत्सर वाटेल का ग? तुला तिचा मत्सर वाटेल का ग? तसं असेल तर कविता वाचू नकोस. तसं असेल तर कविता वाचू नकोस. पिऊ नकोस पापण्यांनी या ओळी, तृप्त होशील याची खात्री तुला तरी आहे. तृप्त होशील याची खात्री तुला तरी आहे. असल्यास कर प्राशन या कविता, तिच्या अंगांगावर उठू देत तुझ्याच मिठीच्या स्वाक्षऱ्या. शब्दांचे बनू देत ओठ आणि अर्थांचे मुखे. तुझे अथपासून इथपर्यंतचे श्वास विसरून जा माझ्या कवितेचे. तुझे अथपासून इथपर्यंतचे श्वास विसरून जा माझ्या कवितेसाठी. मग माझ्या कवितांना फुटतील पंख तुझ्या श्वासांचे. कविता जरूर वाच. ये तो दिल की भाषा है. Next time I'll read one or two poems on the how we work, and you might be interested in bureaucracy and bureaucratic poems. So one or two of them, and I think we will meet again maybe sometime in the future to read more poems. ये इस कविता का नाम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. दिस इज ओरिजिनली रिटन इन मराठी, ट्रांसलेटेड इन हिंदी बाय माय वाइफ. उसकी अंग्रेजी बेहतर है, मेरी मराठी बेहतर क्योंकि वो हिंदी भाषी है. दिस इज अबाउट हाउ फाइल्स मूव, पेपर्स मूव, सरकारी काम कैसे चलता है उसके बारे में. It was a neatly typed application on one side of the paper, in triplicate, in prescribed format, and submitted before the due date. You remember all the conditions that come with a government application. It was a neatly typed application on one side of the paper, in triplicate, in prescribed format, and submitted before the due date. Form number 17BC. For permission to think freely. Form number 17BC or whatever. For permission to think freely under section 54 BE and S5A of Freedom of Expression Act of 1709 as amended from time to time. It had usual columns: father's, husband's name, age, previous experience within bracket of thinking freely, employment details, and the duration for which permission is required, etc. It was addressed to secretary. He wrote, "Please discuss," to his additional.
additional wrote. You have also called, somebody called additional secretary after the secretary. There is a hierarchy. It was addressed to secretary. He wrote, please discuss to additional secretary. Additional wrote, discussed, please speak to his JS. JS means joint secretary, just like a director general in the American system or elsewhere. And that means a cog in the wheel actually means nothing, but not always. Particularly when he scribbles immediate or put on file, or when he remarks, PP please. PP means previous papers please. By the way, PP means previous papers. Well, learn to live with the abbreviations, otherwise you are an illiterate person. Let's proceed. JS marks the file to DF. DF means Director Freedom. Yes, I am Director Freedom, but I am not free to direct. I put my initials. They are called Dhobi mark. It's known as Dhobi mark in the department. Application is still on its way down from US, that is Under Secretary, to SO, meaning section officer, and then to an assistant. Good God, Daftari has disappeared. There used to be a person called Daftari also. The application now comes back with a pant and shirt, the note portion and the correspondence, and a tie and a coat, that is the file and the file cover. Now it becomes an FR. FR is first receipt. Or it could be PUC, paper under consideration. JS asks for a copy of the Rules and Regulation and the Freedom of Expression Act 1709. Copy obviously not available. 3 years down the line, freedom is untraceable. Law is a silent spectator. Yes, yes, 1709. 3 years down the line, freedom is untraceable, law is a silent spectator, the applicant died of air pollution, the bureaucrat retired, and open an NGO for freedom. Somebody is still trying to process the papers, and the file has several volumes and is still thriving. And is still thriving. Minister said we must have an overall planning for the development of the masses. Minister said we must have an overall planning for the development of the masses. Secretary said it's a very, very complex problem. The guest lecturer said change in mindset is required. World Bank said we need a reform agenda. The experts said education and health are important. ADB said decentralization is the key. The economist said the tariffs should be levied and lowered at the same time. The newspaper said a lot of things in one day. MiGs collide in the mid-air, tribal boys stripped, riots rock Nashik, minister in Bofors net, Veerappan demands, state bends, etc., etc., etc. I ask myself, who is mad? Me or the world? And that's the point. I think I should conclude now. Last Hindi poem, so that we come back to our Matrubhasha and Rashtrabhasha. And this one
which I had recently read at the consulate. This is on the beauty of Damascus, the city of Damascus. How जैसे दिल्ली के ऊपर मैंने लिखी है, वैसे ये कविता जो है दमास्कस के बारे में। दमास्क को हिंदी में, दमास्कस को दमिश्क बोलते हैं। हमने इसका अन्वय लगाया कि दम और इश्क। आज अगर आप दमास्कस की हालत देखें तो क्षतिग्रस्त है, आहत है, एक जख्मी शहर है। हमको तो हमसे ना सुनाया जाता है ना देखा जाता है। वहाँ की भाषा में लिखी मेरी किताब का वहाँ के शिक्षा मंत्री ने जब विमोचन किया तो उन्होंने कहा कि आपकी किताब इतनी अच्छी है कि हम इस राष्ट्र का जो है राष्ट्रीयता आपको प्रदान करना चाहते हैं। पता नहीं मैं एक्सेप्ट कर लेता तो क्या होगा। लेकिन शहर बड़ा सुंदर है, लोग बड़े सुंदर हैं। तो उनके बारे में मैंने जहाँ जाता हूँ वहाँ सोचता हूँ कि अगर मैंने इस हवा ले लिया अपने फेफड़ों में, अगर यहाँ का पानी पिया है, अगर मैंने यहाँ का खाना खाया है, तो आई ओ दिस समथिंग टू दिस कंट्री, दिस प्लेस। इस ज़मीन पर जन्नत है, दम है, इश्क है, दमिश्क है शहर में। दम है, इश्क है, दमिश्क है शहर में, दिन में रात में मस्ती है दोपहर। दम है, इश्क है, दमिश्क है शहर में, दिन में रात में मस्ती है दोपहर में। क्या कहें इन मौसमों का गंध भी है, फूल भी है। वहाँ अगर जाएँ आप रास्ते में, आपको पुराने ज़माने में जब अमीन सयानी का बिना का गीतमाला चलती थी तो आप गली से गुजरे तो सबके रेडियो ऑन होते थे, तो आपको सुनने के लिए कोई घर में बैठने की जरूरत नहीं। दमास्कस में एक के बाद इतने सारे जस्मीन के फूलों की शाम को महक आती है कि आप चलते रहो तो आपको लगता है कि शायद आप पैराडाइज में चल रहे। इतना सुंदर। क्या कहें इन मौसमों का गंध भी है, फूल भी है, गर्मी है गर ठंड भी है और हवा के शूल भी है। बारिशें है बर्फ भी है बरादा ताल भी है, गाल सारे लाल भी है, खूब सारे बाल भी है, हंसिनी की चाल भी है। बारिशें है बर्फ भी है बरादा ताल भी है, गाल सारे लाल भी है, खूब सारे बाल भी है, हंसिनी की चाल भी है। दम है, इश्क है, दमिश्क है। दम है, इश्क है, दमिश्क है शहर में। इस शहर में क्या नहीं है, इस शहर में क्या नहीं है, सुख में देखा नहीं है। सुख मतलब मार्केट, बाजार, सोना होता है, चांदी होती है, लेकिन सुख तो सुख है, विशेषता महिलाओं के लिए, आजकल आदमियों के लिए समानता का विश्व। इस शहर में क्या नहीं है, सुख में देखा नहीं है, प्यार भी है, यार भी है, झंझनाता तार भी है, इत्र भी है, मित्र भी है, हर खुशी के सूत्र भी है। इत्र भी है, मित्र भी है। दमास्कस इज वेरी फेमस फॉर इट्स फ्रेग्रेंसेस, परफ्यूम्स। जैसे लखनऊ का नाम इस बार इसलिए लेता हूँ कि मेरी पत्नी कहती है कि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। इत्र भी वहाँ से अच्छी खुशबू आती है। याद आ रही है। इत्र भी है, मित्र भी है, हर खुशी के सूत्र भी है, हर जमीन पर मन्नतें। मंदिर में जाओ, मस्जिद जाओ, मन्नतें मांगो। हर जमीन पर मन्नतें, पर इस जमीन पर जन्नतें है। दैट इज दमास्कस। हर जमीन पर मन्नतें, पर इस जमीन पर जन्नतें है। वो यही है, वो यही है। क्या पहाड़ों का क्या पहाड़ी काशियों की खूबसूरत क्या नज़ारा। देख लो मस्जिद यहाँ की, स्पर्श लो इतिहास सारा, स्पर्श लो इतिहास सारा। शाम क्या है, क्या सवेरा। इस पे शाम शब्द पर स्पन है, क्योंकि जो सीरिया दमास्कस का जो एरिया है उसका पुरातन नाम शाम है। जो हमारा शाम वही उनका शाम। शाम क्या है, क्या सवेरा, सांस लो इसकी हवा में,
आए नहीं मौका दोबारा। और आज की हालत देख के लगता है सच में आए नहीं मौका दोबारा। सांस लो इसकी हवा में, आए नहीं मौका दोबारा। दम है, इश्क है, दमिश्क है शहर में, दिन में रात में, दिन में रात में, रौनक है दोपहर में, रौनक है दोपहर में। आपका सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते। नजमुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और कृपया नजमुल का ताली बजाने के लिए। हमने ट्रूली एक कलाइडोस्कोप देखा है जिसमें उनकी डिफरेंट रेंज कविताओं की देखी। दम इश्क से लेकर मुझे रात में नींद नहीं आती, मतलब कुछ और करता था। लेकिन कविताओं की रेंज और जो भावनाएं, सरलता और सिंप्लिसिटी जो कविताओं में देखी है वो बिल्कुल मानवीय है। हमारे एम्बेसडर मानवीय है, एक राजनीतिक सिर्फ नहीं है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई और हम ऐसे कार्यक्रम आगे भी करेंगे। और उसमें मेजर साहब ने हमको वादा किया है कि हमारे साथ बैठकर और काफ़ी बात करेंगे। तो हम ऐसे मौक़ों की को आगे लाने की कोशिश करेंगे।